ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس نے سارے دنیا کا مالک ہے اور پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو گیا سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام امت مسلمہ پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمام پر اللہ کا رحمت برکت ہمیشہ نازل ہوتی ہے۔ آمین بولو۔ رحمت آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی دے سکتا ہے نا، اللہ ہی رحمت ہم پر نچھاور کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح برکت ہے، ساری دنیا والے مل کر کسی آدمی کو برکت دے سکتے ہیں کیا؟ پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ تو زیادہ دے سکتے ہیں، زیادہ سے برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ کیا مانگنا ہے؟ بولو بھائی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے ایسی چیز مانگنا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ایسی چیز اللہ کو بس مانگنا ہے۔ ایک ہے رحمت، دوسری ہے بولو جی برکت۔ بھائی یہ برکت کے لیے انسان اپنے زندگی کو نچھاور کر رہا ہے، کسی حال میں کیا ہو جائے، سکون کی زندگی مل جائے۔ اس لیے جس آدمی کے زندگی میں اللہ برکت نازل فرما دیں گے، اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو جائے، دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی۔ اس لیے برکت کیا ہے؟ اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم برکت کو مانگیں گے، کثرت کو نہیں مانگیں گے۔ اللہ ہم زیادہ پیسہ دے، زیادہ عمر دے، ایسا نہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے کمائی میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، ہمارے روزگار میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت دے۔ برکت سے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ برکت اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس اس کا خزانہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاس ہمیں ہمیشہ اللہ سے رحمت کی اور برکت کی دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل، کرم ہے۔ یہ اس وقت کا مجموعہ بہت قیمتی مجموعہ ہے، بہت محنتوں کے بعد آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ بھائی یہ کہ کمپنی پر کتنے مرتبہ پتا نہیں، حمید صاحب نے اتنا محنت، کل سے جماعت ادھر ہے، 2 دن سے لگاتار آپ لوگوں کے، اس لیے کہ کسی طرح آپ لوگ ہمارے ہو جائے، ہم تمہارے ہو جائے، سب مل کر جنت میں ایک ہو جائے، یہی سب کی آرزو ہے۔ اللہ جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اسی طرح ہم تمام کو اللہ جنت میں جمع فرمائے۔ آمین۔ جنت میں ایسا ہی ایک یعنی
मैदान होगा, उसका नाम क्या है? मस्जिद। वो अल्लाह वहां हाजिर होंगे, अल्लाह का दीदार होगा वहां। सबका क्या होगा? सब अल्लाह को देखेंगे। देखना है नहीं देखना है भाई? ये दुनिया के आंख से नहीं देख सकते अल्लाह को, लेकिन अल्लाह उसके लिए एक आंख में पावर देंगे, उस पावर से, उस आंख के ही से अल्लाह को देख सकते हैं। अल्लाह को देखना, अल्लाह अकबर। अल्लाह को देखने के लिए जन्नती लोग अपने बीवी छोड़कर, हुरुल ईन को छोड़कर आ जाएंगे अल्लाह को दीदार करने। मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ, जब आप यहाँ गरीब हैं इस वजह से कि दीन की, अल्लाह की दीन की बातें, अल्लाह की नबी की बातें सुनने ख्वाहिश आप लोग बैठे हैं। ऐसा ही हम लोगों को कल अल्लाह के सामने हुजूर होगा, अल्लाह के सामने हमारा अल्लाह का दीदार होगा, तो कितना खुश नसीब हो गया। अल्लाह अकबर। जब जन्नती जन्नत में आयशो आराम के साथ रहने के बावजूद जब जन्नत में अल्लाह का जब दीदार करेगा, उसके बाद उसको उसकी उसकी बीवी की भी याद नहीं आएगी। वहां की कोई आयशो आराम का कोई उसका एहसास नहीं होगा, उसका परवाह नहीं करेगा। सब अल्लाह को देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। अल्लाह का दीदार इतना, अल्लाह अकबर। अल्लाह का दीदार देखना अल्लाह सबको नसीब फरमाए। भाई हम लोग कहाँ से आए? भाई जन्नत से आए। आप लोग पूछेंगे कहाँ से आए? कलकत्ता से नहीं। असल हमारी जगह कहाँ से आए? कहाँ थे हमारे बाप दादा, हमारे माँ बाप? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम कहाँ थे पहले? जन्नत में। जन्नत से अल्लाह उनको भेजा इस दुनिया में आए। जाओ, ये दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत का खेती है। जाओ आखिरत की खेती के, यहाँ खेती बाड़ी कुछ कर लो, जो यहाँ बोएंगे वही वहां काटेंगे। क्या भाई? जो यहाँ आपको अनाज, जो अनाज को डालेंगे जमीन पे, वही अनाज आपको वहां आएगा। अब यहाँ आलू डालेंगे तो आलू काटेंगे, दाना काटेंगे तो चावल डालेंगे, चावल काटेंगे। इसी तरह जो अमल हम अच्छा अमल करेंगे इस दुनिया में रहते हुए, जितना अमल करेंगे, जितना नमाज पढ़ेंगे, जितना दुआ करेंगे, जितना जिक्र करेंगे, जितना अल्लाह से मांगेंगे, जितना अल्लाह से तौबा करेंगे, वही इसका रिएक्शन वहां हमको मिलेगा। अगर दुनिया में आए भाई ऐसा ही आए, ऐसा ही जिंदगी गुजारे, चले गए, नहीं भाई, ये दुनिया में आने का एक मकसद है। दुनिया का मकसद क्या है? ऊंचा मकसद है। ये दुनिया में सब आए जाए, ऐसा नहीं। हमारा आने का एक अलग ही मकसद है। हमारा एक यानी रूट है, हमारा एक हाईवे है। उस हाईवे में जाएंगे तो हमारा सीधा हमारा गांव जा सकते हैं। ऐसा ही एक अल्लाह का नबी का एक तरीका है, अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका है। इस पर हम चलेंगे तो हमारा जाने का कहाँ होगा? जन्नत पर जाएंगे। अगर इसको छोड़ देंगे, ट्रेन आपको मिसाल को समझाने के लिए, ट्रेन कितनी पट्टी पर जाती भाई? अरे बोलो भाई। दो पट्टी है। ट्रेन को जाने के लिए दो पट्टी जरूरत है। जब दो पट्टी में जाएगा तो खैर के साथ आप बंगाल जाएंगे। अगर वो दो पट्टी से अगर एक पट्टी में जाने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? उलट पलट हो जाएगा। इसी तरह हमारे लिए भी जिंदगी गुजारने के लिए दो तरीके हैं, यानी दो रास्ता है। एक किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। एक अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह का हुक्म है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। जब दो पट्टी में जब जाएंगे तो सीधा जाएगा। जब इस ट्रेन इस पट्टी से अगर निकल जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, तो हमारा खैरियत नहीं रहेगा। इसलिए देखो भाई, ये दो पट्टी को हम थामे पकड़े रहेंगे। जब तक उसको मजबूती से पकड़े रहेंगे, अल्लाह हमको क्या करेगा? बचाता रहेगा हर शुरूर फतन से, हर शैतानियत से। कोई भी हुकूमत कोई हरा नहीं सकता जब तक हम इस चीज पर कायम रहेंगे। इसलिए इंशाल्लाह कायम रहेंगे, इस पर इंशाल्लाह करेंगे भाई। दायम नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म और नबी के सुन्नत पर हमारी जिंदगी की इंशाल्लाह अपना लेंगे इंशाल्लाह।
دیکھو بھائی ہمارے لیے سب سے دیکھو اسلام کے فرائض میں 5 فرائض ہیں. 5 فرائض میں جب پہلا فرض کیا ہے؟ کلمہ پڑھو. پہلا فرض کیا ہے؟ کیا بولو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر ایک آدمی کے دل میں ہے. یہ کلمہ اتنا اونچا کلمہ ہے. اگر 70 نہیں 90 سال کا ایک کافر یعنی کفر میں رہا ہوا ایک بندہ اگر اس کے زبان میں ایک مرتبہ یہ کلمہ آ جائے, دل سے وہ تصدیق کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 90 سال تک وہ کفر شرک میں بدعت میں وہ ڈوبا ہوا آدمی جب ایک مرتبہ اس پاک کلمے کو پڑھ لے گا, اس پاک کلمے کی بدولت وہ کہاں چلے جائے گا؟ بھائی جنت کا حق ہو جائے. وہ 90 سال کا جتنا گناہ کیا تھا وہ سارے گناہوں کا اللہ کیا کریں گے؟ مٹھا دیں گے. یہ ایسا کلمہ ہے, اس کلمہ پڑھنے سے وہ کس کا ضمانت میں آ گیا؟ اللہ کی ضمانت. جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے اللہ ضامن لے بھائی اس کو جنت کو بھیج لے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی جنت کو جانے چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنتی ہے. کیا بھائی وہ کہاں جائے گا؟ جنتی. بھائی جنت معمولی چیز ہے, اس کے بارے میں بولنا ابھی وقت نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے دوسری ہمارا اس ایمان کا اسلام کا فرائض, پہلا فرض ہم کلمہ پڑھ کے ہم نے الحمدللہ سب لوگ پڑھے ہیں, سب پر فرض ہے کلمہ پڑھنا. فرض ہم نے اللہ نے جسے توفیق دیا کلمہ پڑھنے. دوسری فرض ہے نماز. جب ایک آدمی اب اس میں یعنی کلمہ پڑھ لیا, ایمان میں آنے کے لیے اس کا کلمہ پڑھنا شرط ہے. تصدیق بالقلب اقرار باللسان, دل سے مان لیا اور زبان سے اقرار کر لیا میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں. جب کہہ دیا تو وہ ایمان میں آ گیا. تو ایمان میں آنے کے بعد اس پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ وہ نماز. جب ایک آدمی مسلمان میں آ گیا, اسلام میں آ گیا, تو اس کے لیے پہلا فرض کیا ہے؟ اس کے لیے نماز پڑھنا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے روزہ بعد میں, زکات بعد میں, حج بعد میں. پہلا ایمان لانے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کا فرض کیا ہے؟ نماز ہے. یہ نماز ایسی چیز ہے, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے احکامات کو, سارے فرائض کو دنیا میں یعنی زمین پر عرش سے لے کر فرش پر اللہ نے یہاں زمین کے اس فرش پر کیا کیا؟ فرض کیا. روزہ ہے, اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بول کے بتایا اے جبرائیل جا کر اس قرآن کی آیت کو جا کر اپنے حبیب کو سناؤ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم. ابھی روزہ کا مہینہ قریب آ گیا, ابھی برکت کا مہینہ آ گیا بھائی, ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, ابھی ایک ہی مہینہ 20 مہینے اس پر اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. اس لیے اب رمضان یعنی روزے کے بارے میں اللہ نے کہا, جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کر کہو میرے حبیب سے یہ فرض ہے. اسی طرح روزے زکات کے بارے میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات کے بارے میں کہو جا کر زکات دینے کا. اسی طرح حج کا بارے واتموا الحج والعمرۃ للہ, بھائی جا کر کہو اے جبرائیل اپنے حبیب سے کہو جا کے کیا حج کرو, حج کرنے کا حکم دو, حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھلا کر آؤ. اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے, کہا چلے. لیکن نماز کا وقت آیا, نماز کا فریضہ کا جب ادا کرنے کا یعنی اللہ نے جو دینے کا وقت آیا, اس وقت اللہ اکبر, اس نماز کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ عرش پر بلایا. کہاں بلایا تھا؟ ہاں, فرش پر نہیں, یہاں زمین میں نہیں, فرض ہوا نہیں. یہ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں نا, بھی 5 وقت کی نماز ہے, ہمیں کیا سمجھے, کیا کہ معمولی سمجھے, نماز پڑھے تو پڑھے جانے تو نہیں. بھائی نماز ایک نماز کے بارے میں اللہ اکبر کتنی بڑی قیمتی ہے, کتنا فضیلت ہے, کتنا ثواب ہے, کتنے بشارتیں ہیں نمازی کے لیے, کتنے بہت سے خوشخبری ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پڑھایا بھائی اللہ نے؟
بولو بھائی کہاں بلایا؟ معراج کو. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز کیا ہے؟ مؤمنین کا معراج ہے. معراج کا معلوم کیا؟ ابھی معراج کا مہینہ بھی یہی ہے. ابھی شبی معراج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جہاں ابھی لڑائی چل رہا ہے، جنگ چل رہا ہے، وہ غزہ میں، وہاں جو بیت المقدس ہے نا، وہ وہاں فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، وہاں سے اللہ کہتے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے براق، ایک جانور تھا، وہ گھوڑے سے چھوٹا، خچر سے بڑا تھا. وہ براق کتنا بڑا تھا؟ جو گھوڑے سے چھوٹا تھا اور خچر سے بڑا. ایسے ایک جانور تھی، اس کا نام براق ہے. وہ براق پر اللہ کے نبی کو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام کیا کیے؟ مسجد الحرام سے، وہ کعبۃ اللہ سے، وہاں سے لے کر، وہاں سے سواری کر کے کہاں لے کر آئے؟ بیت المقدس کو لے کر آئے. بیت المقدس کو لے کر آ کے وہاں سب انبیاء علیہ السلام موجود تھے. سارے انبیاء تھے وہاں. کہاں؟ بیت المقدس میں. کتنا؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہے نا، اتنا انبیاء علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. سب کی یعنی انتظار تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا انتظار تھا؟ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے امامت کون بنے؟ کون امام کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی. اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی ہم کو فخر ہے. اس نبی کی امت ہی ہیں ہم لوگ. اس نبی کی امت ہے بھائی. کل قیامت کے دن اللہ سب کو کیا کرے گا؟ سب کو جمع کریں گے قیامت میں، حشر کے میدان میں. سارے انبیاء آ جائیں گے، سارے شہداء آ جائیں گے، سارے رسول آ جائیں گے، ولی آ جائیں گے، سارے انسان آ جائیں گے، بادشاہ ہو جائیں گے. عجب عرب پورا ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے حشر کے میدان میں. جب کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. کیا بھائی؟ اللہ کے سامنے بات کرنے کی کسی ہمت ہوگی کیا؟ اللہ جلالیت میں ہوگی. اللہ اس وقت اگر حکم دیں گے تو ایک شخص کو دیں گے. کون ہے معلوم کا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو بھائی؟ ارے بولو بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں گر جائیں گے. اللہ کے سامنے سجدہ میں جانے کے بعد اللہ کہیں گے اے محمد آپ کے سر کو اٹھائیے، آپ پوچھئے کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی وہاں بھی ہمارے خیال رکھیں گے. یا امتی یا امتی، یا اللہ میرے امت کے بارے میں، میرے امت کو کیا کر دے؟ جنت کو بھیج دے. یا اللہ کیا کریں گے جی؟ اس کے نبی کی امت ہے ہمیں. کل اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں سب کے سامنے ہمارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. ہمارا بیوی بچے، حضرت ابھی بولے مولانا شفیع حضرت دامت برکات ہوں، وہاں کوئی بیوی کام نہیں آئے گی، آپ کا بینک بیلنس، بیٹا بچہ کوئی بھی آپ کا کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. باپ بیٹا کو دے کر دوڑے گا، بیٹا باپ کو دے کر دوڑے گا، ماں بیٹا کو دے کر دوڑے گی. باپ سب کی اپنی نفسی کی پرسانہ حال ہوگا. اس وقت میں اگر ہماری سفارش کرنے والے ہیں ایک آدمی، ایک شخصیت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ویسے نبی کو، ویسے انبیاء علیہ السلام کو سارے نبیوں کا نبی ہیں، خاتم النبیین. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کو قتل کرنے کا قاتل ہے، وہ جھوٹا ہے. ابھی کوئی نبی کے بعد کوئی نبی کہے گا وہ کذاب ہے. مسلم کذاب کو جیسا قتل کیا ایسا قتل ہے. لیکن کسی کی ہمت نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آخری نبی ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو ہمارا یقین ہے اب اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے نا بھائی. سب کو یقین ہے نا؟ ارے بولو بھائی. یقین ہے، یقین رہے گا تو ہمارا ایمان رہے گا. آج بہت سے کذاب یعنی جھوٹے لوگ آگے مجھے ایسا آتا ویسا آتا، نہیں، سورے جھوٹے. اللہ کے نبی کے بعد وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا. کہاں بلایا؟ وہاں سے بیت المقدس جو ابھی یا ہے نا جو فلسطین میں، وہاں سے وہ مسجد اقصی سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ارے بولو بھائی. آسمان کو. معراج کو کیا؟ عروج یعنی اوپر چڑھے. کہاں چڑھے؟ اوپر آسمان میں. آسمان میں کیسا چڑھے؟ اللہ کی طرف سے ایک سیڑھی جیسا آیا، وہ سیڑھی پر اللہ کے جبرائیل علیہ السلام ان کو بلا کر جاتے ہیں.
एक एक आसमान पर 7 आसमान उंगल के जब एक इंतहा हो जाता है इंद सिदरतिल मुंतहा, जब एक बेर का दरख्त आया वहां जन्नत के ऊपर हिस्से में, वहां जाने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह अभी मेरा जाने का पावर नहीं है। क्या बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम? अरे बोलो भाई, इसके बाद मैं नहीं आ जा सकता या रसूल अल्लाह, इसके बाद मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा मेरा पर जल जाएगा, मैं जल जाऊंगा। अल्लाह की तजल्लियात ऐसे ही, अल्लाह की जलालियत को कोई नहीं दे सकता, अल्लाह की नूरानियत को कोई देख नहीं सकता। भाई अल्लाह के मखलूक देखो, सूरज देख सकता क्या? अरे बोलो भाई, सूरज को डायरेक्ट उधर देख सकता क्या? किसी का में ताकत है? हाँ, अल्लाह की मखलूक है। जब अल्लाह खालिक है, जब खालिक को उस परवरदिगार को देखने के लिए हमारा इस आंख से नहीं देख सकते, अल्लाह वहां जन्नत में जाने के बाद वो पहुंच गया। बहरहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोड़ दिया, वहां जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूल अल्लाह आप ही जाइए, इसके बाद आप ही का मर्तबा है, आप ही जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता। उसके बाद 7 आसमान के बाद अल्लाह का अर्श आया, अल्लाह का अर्श कुर्सी आया, वहां अल्लाह की जलालियत है, अल्लाह वहां मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह को अपने आंखों से दीदार किया। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी क्या किया है? अल्लाह को डायरेक्ट क्या किया भाई? अरे बोलो भाई, क्या किया? दीदार किया। अल्लाह को क्या किया? डायरेक्ट दीदार किया। हाँ, अल्लाह को देखने के बाद अल्लाह से हम कलामी हुई, अल्लाह से बात करते हैं। कौन कौन बोल भाई? हमारे नबी। अरे सब बोलो, समझ में आता नहीं बात? अरे बात समझ में आती नहीं? हाँ, कौन बात करते हैं अल्लाह से? आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, आपको समझ में आता नहीं? अरे बोलो भाई, हमारे नबी क्या करते हैं? अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर बात करते हैं, बात करने के बाद अल्लाह बात करते हैं, दोनों के बाद अल्लाह के रसूल के दरमियान एक जो ये है ना, वो जो का छड़ी ऐसा थमाएंगे तो कैसा करीब आ जाएगा, कमान वैसा इतना करीब अल्लाह के रसूल इतना करीब हो गए। इंदा यानी फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, बहुत करीब हो गए, एकदम करीब हो गए। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के नबी के सिवा कोई फरिश्ते ही से। वहां अल्लाह के पास बात करने के बाद अल्लाह क्या करता है? वहां पर अल्लाह ने एक हदिया यानी गिफ्ट देता है। जब आप दोस्तों को देखने में जाते हैं, जाए तो हमारे लिए वो दोस्त क्या करता है? कुछ देता कि नहीं करता? वैसा ही अल्लाह को देखने के लिए यहाँ से 7 आसमान को पार करके अल्लाह के पास जाते हैं। वहां अल्लाह बुलाकर क्या देता है? अल्लाह के नबी हबीब को नमाज का तोहफा देता है। क्या तोहफा देता है? अरे बोलो भाई, कहाँ नमाज तोहफा दिया? आसमान में या जमीन में? इतनी बड़ी ऊंची नमाज, ये इबादत है, मामूली नमाज नहीं है। वहां बुलाकर 7 आसमान के ऊपर बुला के वहां अल्लाह के नबी को तोहफा दिया। कितना नमाज मालूम क्या? 50 नमाज दिया। कितना नमाज में? 50 नमाज हम पढ़ सकते कभी? अभी 5 नमाज का फर्ज है, वो 5 नमाज ही पढ़ना बहुत मुश्किल है। कभी पढ़ते क्या? बहुत मुश्किल है। 5 वक्त को वो 50 वक्त नमाज से 5 वक्त नमाज का कम करते अल्लाह के नबी आते हुए 5 नमाज को लेकर आए। कितना नमाज? 5 नमाज को लेकर अल्लाह के हुजूर से पहाड़ से लेकर जमीन पर उतर आए। आना ही था जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बिस्तर में सोते हैं ना, वो बिस्तर वैसा ही गर्म ही था। यहाँ लंबा किस्सा है, मेराज का किस्सा हुआ, बाद में जुम्मा में बैठ करके वैसी कीमती एक तोहफा लेकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज। क्या भाई? वो नमाज को लेकर आकर अपने उम्मत को कहा, देखो भाई, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ऐसे ही बोल रहे थे, भाई अल्लाह ने मेरे ऊपर नमाज को फर्ज किया है, हमारे उम्मत पर 5 नमाज। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, आप मेराज पर जाके आगे नमाज को पढ़ लिया, यानी नमाज का तोहफा लेकर आया, हम कैसा मेराज पर जाना, हम भी मेराज जाना कैसा है या रसूल अल्लाह? तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, भाई तुमको मेराज जाना है क्या? अल्लाह को देखना है क्या? देखो अल्लाह ने नमाज को मेराज का एक जरिया बनाया है। देखो हम अल्लाह पर तकबीर बांधते हैं, किसके सामने पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, अरे बोलो, पीछे कौन?
अल्लाह के सामने क्या बोलते हैं हमें? अल्लाह अकबर बोलते हैं। कोई हमारे सामने नहीं है, अल्लाह हमारे सामने है। अल्लाह हमको देखता है। हमें दिल में क्या ख्याल आता है नमाज में? भाई मुझे अल्लाह देखता है, नहीं तो मैं अल्लाह को देखता हूँ, ऐसा ख्याल आना। दो ख्याल आना, क्या भाई? मैं किसको देखता हूँ? अल्लाह को देखता हूँ, या मुझे अल्लाह देख रहा है। ऐसा ख्याल से नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जानदार होगी, हमारी नमाज में जान होगी। हमारी नमाज से हर चीज हम मांग सकते हैं। हमारी नमाज क्या हो जाएगा? मेराज हो जाएगा। जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी को मेराज पर लेकर गया ना जिब्राइल, वो मेराज का सफर को आपको महसूस करना है तो नमाज में महसूस कर सकते हैं। नमाज इतनी बड़ी कीमती चीज है, नमाज इतनी बड़ी कीमती तोहफा है, इसलिए वो नमाज को क्या करना है? हमें पाबंदी से पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, पीछे वाले बोलो, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे भाई। देखो तीन चीज अल्लाह पढ़ना, एक है हम अल्लाह की मदद से नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ना एक है, नमाज को दायम पढ़ना, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमुन। नमाज तो हमें जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ना। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जुम्मा में, ईद की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। भाई नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है। दिन में कितना फर्ज है? 5। 50 वक्त से लेकर 5 में आया है। 50 से 5 आने पर भी हम नहीं पढ़ सकते तो हम अल्लाह के पास क्या जाओगे? भाई ये बहुत इसका पहला, जब इंसान दुनिया से चले जाएगा ना, इंसान मर जाएगा ना, अरे सुनो भाई, जब इंसान दुनिया से मौत होकर मरने के बाद जब खबर में उसको रखेंगे, उसको वहां सवाल जवाब होने के बाद पहला सवाल इसका ये होगा, नमाज क्या है? साहब इसके बारे में पूछेंगे अल्लाह। तुम कितना हज करे, कितना रोजा रखे, कितना ज़कात दिए, कितना सदका किए, वो सवाल बाद में। कितना कमाया, कहाँ कमाया, वो सब बहुत सवाल हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल क्या होगा? अरे बोलो भाई। खबर में भाई वहां कौन हमारे साथ नहीं आएगा? अरे खबर में रखने के बाद सब भाग जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे। हमें अकेला ही रहना है। खबर अकेला है, कीड़ों मकोड़ों का घर है, अंधेरे का घर है, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। ना कोई लेट रहेगा, कोई रिफेट रहेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, सब मिट्टी डालकर बंद करके चले जाएंगे। अकेला रहेंगे उस वक्त जब वहां खबर में 2 फरिश्ते आएंगे, वो आकर क्या कहेंगे? मुनकर नकीर। ये 2 फरिश्ते आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबीयुका। आपका रब कौन है, आपके नबी कौन है, आपका दीन क्या है? ये पूछने पर हमारा सवाल का जवाब होना है नहीं? अरे बोलो भाई, जरूर होना। इसलिए तैयार यहाँ करना है। हमारे सवाल का जवाब यहाँ तैयार करेंगे, वहां सवाल का जवाब तैयार होगा। वहां नमाज के बारे में उसके बाद पूछा जाएगा सबसे पहले, तो उस वक्त उस नमाज का यहाँ एहतिमाम करेंगे तो वो नमाज के सवाल का वहां जवाब दे सकते हैं। वो नमाज खुद आपके सामने आकर आरस जैसा आकर खड़ जाएगी, आपकी बीवी जैसा। बीवी नहीं आएगा, जो आप नमाज पढ़े ना, वो नमाज एक अल्लाह एक शक्ल दे देगा वो नमाज को। उस नमाज की पाबंदी के साथ जो आपने 5 वक्त नमाज पढ़ा, आप कंपनी में रहो, फैक्ट्री में रहो, ऑफिस में रहो, तन्हा रहो, मजमू में रहो, किधर भी रहो, जंगल में रहो, किसी हाल में नमाज माफ नहीं। माफ है दुनिया में 2 ही आदमी को, एक पागल को, एक बच्चा को। क्या भाई हम पागल है क्या? अरे बोलो भाई, अल्लाह को अच्छा दिमाग दिया है, सेहत दिया है, यानी रोशन ये दिया है सोचने का। हम पर माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। दूसरा, बच्चे भी नहीं हमें, बच्चे से बालिग हो गए, 15 साल होने के बाद आप पर नमाज फर्ज है, किसी वक्त में माफ नहीं। इसलिए ये उतनी अर्श से लेकर यहाँ हमको अल्लाह के नबी ने हमको दिया है। ये 5 वक्त नमाज को हम पाबंदी के साथ, 5 नमाज को हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, 5 तरह के इनाम अल्लाह देंगे तुम्हें। सबसे पहला इनाम क्या मालूम क्या? उसके रिज़्क़ की तंगी अल्लाह का। पहला क्या है? हम वहां से बंगाल से यहाँ कहीं गए, बोलो भाई, कुछ पैसा कमाए, कुछ खाए, अपने पेट का पालने के लिए। एक बार इस पेट पालने के लिए
वहाँ बीवी बच्चों का पेट है, माँ बाप का पेट है, उस बच्चों की पेट पालने के लिए यहाँ कुछ कमाएंगे तो कुछ कमा कर वहाँ भेजेंगे, इसलिए है ना। ऐसा ही हमारा इस नमाज इस दुनिया में कुछ अमल करके चले जाएंगे। ये पांचों नमाज को पाबंदी के साथ पढ़कर चले जाएंगे, पढ़ेंगे तो दुनिया ही में अल्लाह इनाम, पहला इनाम, फर्स्ट इनाम क्या देंगे? तुम्हारा रिज़्क़ को तंगी हटा देंगे। तुमने कभी भी तंगी करना नहीं, अल्लाह खुशहाल से आपको रखेंगे, हर वक्त अल्लाह आपको सुकून से रिज़्क़ खिलाएंगे। आप गंजी भी पिएंगे तो बहुत सुकून से पिएंगे, बिरयानी खाना ही सुकून की जिंदगी नहीं। अरे बिरयानी खाकर एक आदमी दूसरा वक्त पर खाने से मना करता है, बिरयानी खाना सुकून की जिंदगी नहीं है, बल्कि सुकून से वो मुराद है जिससे अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर पानी भी पी ले, अगर खजूर भी खा ले, अगर गंजी भी पी ले तो सुकून की जिंदगी वही है। हाँ, अब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ लेंगे 5 वक्त की नमाज, तो ये 5 नफ्स के 5 वक्त की नमाज की बरकत क्या करेंगे? अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को, तंगी को क्या करेंगे? कष्ट हटा लेंगे। तो बस क्या वो बस है ना आपको। वो एक आदमी बोलता भाई तुम फिक्र करो ना, तुम्हारा लाइफ पूरा मैं खाना दो तो क्या करना हो? अरे बोलो भाई, अरे खुश होगा नहीं? अरे एक मालिक बोलता है भाई तुम फिक्र लाइफ में तुम्हारा जिंदगी भर मैं तुम्हारा खाने की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, तो ये एक वक्त उठा तुम कितने खुश हो जाता। अब एक वक्त बिरयानी डालते जाओ ना, कितना खुशी, बिरयानी डालते ना, अल्लाह अकबर, ये कितना मेहनत करे, कितना अल्लाह का शुक्र है। भाई आपका सारी जिंदगी में कभी भी आपको फख्र नहीं आएगा, कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी आपको, हमेशा हमेशा मौत तक आपको किसी की फिक्र नहीं होगी। तो रिज़्क़ की फिक्र, अगर फिक्र है दुनिया में किसी को तो बोलता है भाई क्या भाई इतना मेहनत करता है? भाई एक बारिश पड़ती है मेहनत करता हूँ मैं। अरे भाई इतना मेहनत करता है, दिन भर रात में नहीं सोता, रात भर ड्रम चलाता है, दिन भर ड्रम चलाता, क्या भाई वजह क्या? भाई कुछ कमा लो। भाई ये रिज़्क़ की परेशानी है ना, इस परेशानी को अल्लाह क्या करेंगे? अरे बोलो भाई, हटा देंगे। किसके जरिए से? नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पाबंदी से पढ़ेंगे, हाथ उठाओ भी इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम को मौत तक पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो जी, आमीन। भाई ये मजमा बहुत मकबूल मजमा है, ये मजमा अल्लाह को पसंदीदा मजमा है, ये मजमा फरिश्तों की घेरा हुआ मजमा है, ये मजमा अल्लाह की रहमत के उतरने का फैसला करने होने का मजमा है, ये मजमा अल्लाह फरिश्तों के रख कर फख्र करने की मजमा है, ये मजमा बहुत कीमती मजमा है। हमको पता नहीं भाई ऐसा ही अबे वो बुलाए तो आगे, नहीं 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 नहीं, आप नहीं आए बल्कि बुलाया गया, आप मेहमान बनकर आए, आपके मेजबान हम अल्लाह है, अल्लाह के मेहमान रसूल हैं आप लोग, आप अल्लाह के मेहमान रसूल हैं भाई, इसलिए हम अल्लाह के मेजबान। इसलिए देखो ये नमाज को किसी हाल में क्या नहीं करना भाई, नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। भाई किसी भी हालत हो जाए, बीमारी भी हो जाए, अरे बुखार आ जाए, मार भी चोट भी लग जाए, फिर भी नमाज माफ नहीं, सकरात तक माफ नहीं। एक आदमी खड़े होकर पढ़ सकता है तो खड़े होकर नमाज पढ़ना है, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है बैठ कर पढ़ सकना है, अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता है तो लेट कर पढ़ना है, अरे लेट कर भी नहीं पढ़ सकता है तो वो इशारे से पढ़ सकता है। अरे शरीयत में कितना आसानी है। अरे भाई एक आदमी को पैर करने की ताकत नहीं है तो वो बैठ कर पढ़ सकता है, अरे पैर बैठ कर पढ़ना भी बहुत मुश्किल है तो लेट कर भी पढ़ो। हॉस्पिटलों में कितने मरीज हैं भाई, कितने अल्लाह के नेक बंदे हैं, अरे लेटे हुए लेटे हुए नमाज पढ़ते हैं, मैं कितने आदमी को देखा, अरे इशारा से भी, आंख के इशारे से भी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ इतना तक शरीयत ने आपको यानी हुक्म दिया, बहुत आसानी क्या है शरीयत, दीन युस्रुन ना उसरुन, दीन तो आसान है भाई। अरे भाई दीन आसान है तकलीफ है? आसान है भाई। आप नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए कुछ पैसा देकर आते क्या? अरे अभी भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, यहाँ तो आपको दिया जाएगा, अल्लाह के तरफ से आपको इनाम दिया जाता है, आपके रिज़्क़ के तंगी को अल्लाह का जिम्मा उठा लाता है, अल्लाह जिम्मेदार बन जाता है, भाई तुम्हारी तकलीफ को मैं हटा दूंगा, जाओ। लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेफिक्र रहो, लाइफ लॉन्ग जब तक रहेगा तो उस वक्त तक मेरी इताअत करते रहो,
उस वक्त तक मेरी नमाज की पाबंदी करते रहोगे, तुम्हारे लिए मैं एक ऑफर देता हूँ, वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे लिए रिज़्क की परेशानी को मैं हटा देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या भाई नमाज पढ़ेगा कोई आदमी ऐसा, कोई मालिक ऐसा कह देगा भाई तुम कोई फिक्र करो, खाली काम लेके कर दो, हमारा क्या घर का फैमिली का क्या खर्चा है तो पूरा मैं दे दूंगा, बंद भी चुप रहेगा नहीं। अरे बोलो भाई, भाई बंगाल से आकर कोई मालिक कह दिया भाई आप फिक्र मत करो, हम तुम्हारा जिम्मेदार है, हम तुम्हारा वकील है, तो बोलेगा तो कितना खुश होगा भाई, उसका जान कुर्बान हो जाएगा। अरे उसका पैर का काम तो हाथ से करेगा, अरे करेगा नहीं, अरे यजमान बोल दे, यजमान, अरे यजमानों के यजमान है, अरे मालिकों का मालिक है। अरब यानी वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो रब्बुल आलमीन का हुक्म है भाई नमाज का मेरी इबादत की पाबंदी कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर मैं जिम्मेदारी मैं जामिन देता हूँ, तुमको क्या है रिज़्क की तंगी को हटा दो। इसलिए इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। वक्त की कमी है बहुत, इसलिए अभी सब मुख्तसर 20 मिनट में हमको बात करने का हुक्म दिया है, फिर भी आप लोगों के समझ में गए आना है, फिर भी वही कोशिश है, बात करना बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझना है, आप समझ मत ना भाई। नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कैसा पढ़ेंगे देखो, एक है नमाज पढ़ना है, कैसा पढ़ेंगे, वार में एक बार पढ़ना वो नहीं, साल में एक बार पढ़ना वो नहीं, दायम पढ़ना, हमेशा पढ़ना। क्या करना, हम वार में एक बार खाना खा लेते तो काम करना होगा, मुझे बोलो अगर मैं वार में एक बार खाना खाऊंगा आपको बोले तो काम कैसा करेंगे बोलो। इसलिए हमें वार में एक बार काम करने से फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए रोजाना 5 वक्त की नमाज हम दायम पढ़ेंगे तो अल्लाह कहते हैं उसके लिए इनाम है, जो हमेशा पढ़ता है उसके लिए इनाम है। दूसरी चीज नमाज तो हम हमेशा पढ़ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमेशा पढ़ने के लिए 2 सूरतें, ये क्या है, मस्जिद में आकर हमेशा पढ़ना, क्या भाई मस्जिद में आकर जमात के साथ पढ़िए, उसका सवाब अलग है। आप लोगों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, आपको रोका जाता है, ऑर्डर की तरफ से आपको रुकावट है, भाई बाहर नहीं जा सकते, तो आप बिल्कुल आपके कमरे ही में जहां आप 10 आदमी है, 5 आदमी है, 2 आदमी है, तो फिर भी वो 2 आदमी भी जमात बढ़ा सकते हैं। जब जिसको मालूम है पढ़ने की नमाज पढ़ने का तरीका, वो सामने खड़े हो जाए, पीछे एक आदमी खड़े हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऑफर ये भी दिया है, हाँ ये सारी जमीन को अल्लाह ने मुसल्ला बना दिया। क्या भाई, आप कहाँ भी जंगल में नमाज पढ़े तो हो जाएगा आपका नमाज, आप फैक्ट्री में नमाज पढ़े तो हो जाएगा, आप ट्रेन में बैठे बैठे नमाज पढ़े तो हो जाएगा, फ्लाइट में उड़ते उड़ते पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगा। आपको नमाज मस्जिद ही में पढ़ना नहीं, मस्जिद में पढ़ने की सहूलत है तो मस्जिद में आना बाकायदा फर्ज है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, आप दूर हैं, दूर बहुत लंबा सफर है, लेकिन आपको वहां से आने की सहूलत नहीं है, खतरा है रास्ते का, चोरों का खतरा है, बहुत कुत्तों का खतरा है, तो उस वक्त में आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आप वहीं अपने कंपनी ही में फैक्ट्री में वो नमाज पढ़ने से कोई ओनर नहीं रोक सकता। रोक सकता क्या भाई, वो उसका पूजा पाठ करता है, हम अपने और रब की हम इबादत करते हैं, हमारा तो कोई खर्चा नहीं, वो तो नींबू वगैरह वो 32 करता है, हमारा तो क्या है सिर्फ वुजू करेंगे। हमारे पास नमाज के लिए 7 फर्ज है, बाहर के 7 फर्ज, कितना फर्ज है, अरे बोलो भाई 7 फर्ज। नंबर 1 क्या कपड़ा का पाक होना, क्या होना, कपड़ा पाक रहना। नंबर 2 बदन का पाक, नंबर 2 जिस्म, हमारा जिस्म है ना, ये नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ पक्का यानी कोट शूट डालने की नमाज पढ़ना, बदन इन्हें पेशाब का होना, इस्तिंजा नहीं लिया तो नमाज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए दूसरा फर्ज क्या है, बाहर का फर्ज, दूसरा जिस्म का पाक रहना। पेशाब करते तो वैसा ही जब बाद में नमाज धोलेंगे तो बाहर जहाँ पानी है वहीं उस पानी के जरिए अपने पेशाब का इस्तिंजा क्या करना है, धोना है, फर्ज है भाई, ये फर्ज है, मामूली नहीं सुनने जाएगा। आप परवाने भाई मैं बात नहीं बोलूं, कितना आदमी हमारे साथी हैं बंगाल के लिए, आपको किसी को मैं छोड़ नहीं लगता, मेहरबानी माफ करें भाई, पूछेंगे तो भाई मैं बात नहीं है, क्या बोलते हैं
मैं बोले कल एक आदमी एक लड़का एक नौजवान आया दो आदमी भाई नमाज का टाइम हो गया आ जाओ वो कहता है मेरे पाप नहीं भाई आप मुसलमान है क्या पाप नहीं बदन पाप नहीं अल्लाह अकबर मैं ये कहता हूँ अगर इस हालत में अगर हमारी मौत आ जाए तो क्या करेंगे किसी को गारंटी है क्या हम नहीं मरेंगे कहते अरे किसी को गारंटी बोल सकते क्या हम जिंदा ही रहेंगे जवान के लिए मौत नहीं आएगी बूढ़ा के लिए मौत आएगी बच्चे के लिए मौत नहीं आएगी अरे ऐसा कोई गारंटी है दुनिया में कोई गारंटी जिंदगी नहीं है ये अनगारंटी है कभी जा सकता है ये ट्यूबलाइट गारंटी है एक महीने के लिए गारंटी देता एक साल के लिए ये वाइट के लिए गारंटी पेन के लिए भाई एक महीना लिख सकता है बोल सकता लेकिन हमारी जिंदगी में एक मिनट के लिए हमारे गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबा एक बात बोल खत्म होता हूँ जब कहीं सफर में थे तब इस्तिंजा करके आए तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम कर क्या करना तयम्मुम मालूम क्या तयम्मुम कैसा करना मालूम क्या पानी ही नहीं है आपको पानी पीने के पानी ही है तो उस वक्त में फर्ज दो फर्ज तयम्मुम एक फर्ज क्या करना एक मारना नियत करना फर्स्ट नियत करके दूसरा क्या है तयम्मुम लिरफ़इल हदस मैं तयम्मुम करता हूँ तयम्मुम को तो क्या पानी नहीं कर तो मिट्टी में मारना कहाँ मारना अरे बोलो भाई मिट्टी है साफ मिट्टी वो भी साफ मिट्टी होना ऐसा मिट्टी या दीवार है दीवार पर भी तयम्मुम कर सकते हैं पानी एक आदमी को बुखार जितना से बुखार है तो वो वजू करने से पानी लगने से बुखार बढ़ जाएगा वो भी तयम्मुम कर सकता है किसी को चोट लगेगा खून आता है वो लगेगा तो पानी बहुत बढ़ जाएगा वो भी तयम्मुम कर सकता है लेकिन तयम्मुम करने के लिए फर्ज दो फर्ज है एक मार के तीन फर्ज है एक फर्ज नियत है दूसरा फर्ज एक मार के चेहरे पर मलना वो मारना है ना वो मार के चेहरे पर ऐसा ही मलना और एक मार के दोनों हाथ पे साथ उतना ही हो गया वज़ू हो गया भाई उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं बहरहाल हाँ नमाज के लिए क्या फर्ज बोले हमें दूसरा अरे बोलो भाई जिस्म का पाक होना जिस्म का इंशाल्लाह पाक रखेंगे ना इंशाल्लाह भाई हमेशा मौत तक क्या है हमारी कपड़ा नापाक है जो बदला सकते हैं अगर जिस्म नापाक है तो फौरन पानी नहा ले अगर आप इस्तिंजा जाते पेशाब जाते हैं वहां पानी नहीं है तो फौरन डेला है ना मिट्टी का जो ये है ना उसको रखकर वो खींच ले सकता है नहीं तो टिश्यू पेपर रखकर उसको पानी ये पेशाब को खींच ले सकता है उसको फेंक के बाहर जहाँ पानी है और वहां को धोना है आपको शर्मगाह अपने शर्मगाह को क्या करना है अरे बोलो भाई ढूंढो इंशाल्लाह ऐसा नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं ऐसा अनजाने बहुत से आदमी क्या करते हैं अरे पेशाब करने के बाद धोना क्या जरूरी नहीं भाई जरूरी है हाँ नमाज के लिए दूसरा फराइज क्या है जिस्म का पाक कपड़े का पाक होना जिस्म का पाक होना तीसरा क्या है जगह का पाक होना क्या होना जगह जहाँ नमाज पढ़ते हैं आपके रूम में आप नमाज पढ़ते हैं बोला आपका रूम में क्या पाक होना जान बात रख लेना कोई सब सुपड़ा है नहीं एक प्लास्टिक का हो या आपका हसीर भी आपके पास है वो पाक है तो उस हसीर पर भी नमाज पढ़ सकते हैं इसलिए आप मेहरबानी फरमा कर सुनो भाई आप फैक्ट्री में दूर हैं ओवरसीज वाले बहुत दूर हैं इधर वाले सरोज दूर हैं ऐसे बहुत से भाई आप आए हुए तो बहुत कम है बहुत नहीं आए हुए बहुत लोग हैं आप जो नहीं आए उन लोगों की बात बोलो नमाज का फर्ज कितना अहमियत है नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ने से कितना अल्लाह खुश होते हैं अल्लाह से क्या होता है हम कलामी होता है हाँ नमाज पढ़ने से अल्लाह हमारे रिज़्क़ को तंगी को हटा दे देता है नमाज के बाहर का फर्ज कितना है 6-7 है ये फर्ज को जानना है हर एक आदमी उसके बाद तीसरा फर्ज क्या है जगह का पाक होना चौथा फर्ज क्या है किबला का रुख होना पांचवा फर्ज है नियत करना उसके बाद क्या छठा फर्ज क्या है वक्त नमाज का वक्त भी होना नमाज का नमाज को वक्त आने से पहले नमाज नहीं पढ़ना जगह पाक होना माइंड उसके बाद क्या होना हमारा रुख किधर होना काबे का हम जिधर मुड़ कर पढ़ ले तो हो जाएगा नमाज है हमें पाक है बदन भी पाक है कपड़ा भी पाक है जगह पाक है आपका रूम इधर भिंगा है तो भिंगा पर खड़े के नमाज पढ़ सकते हैं इसके लिए किबला की तरफ रुख होना फर्ज ही है उसके बाद क्या है हमारा वक्त नियत करना और नियत क्या है हमारा क्या है क्या बोला हमसे क्या अच्छा 17 का छुपाना एक फर्ज है 7वां यानी शर्मगाह की मर्द के लिए क्या है यहाँ यानी नाम से लेकर
घुटने के नीचे तक फर्ज है, नाम से लेकर घुटने के नीचे तक फर्ज है। ये सातों फर्ज को हमें रखेंगे तो हमारा नमाज सही होगा। अगर सातों नमाज फर्ज में से एक फर्ज भी आपका कपड़ा पाक नहीं, बदन पाक है, अब नमाज पेशाब का कपड़ा हुआ लगा हुआ है, वो कपड़ा आप नमाज पढ़ सकते क्या? नमाज नहीं होगा। कपड़ा पाक है, बदन पाक नहीं, नमाज नहीं होगा। कपड़ा भी पाक है, बदन भी पाक है, जगह पाक नहीं, तब नमाज नहीं होगा। जगह भी पाक होना, जगह भी पाक है, सब पाक है, तीनों शर्तें हैं। उसके बाद क्या है? आपका रुख किधर होना? किबलत तरफ। उसके बाद किबलत तरफ भी खड़े हो गए, लेकिन आपके शर्मगाह क्या है? कितने आदमी, मैं ये बोलना मैं जरूरी समझता हूँ, पैंट के क्या समझते हैं, यहाँ इसके नीचे से टखली के नीचे से पहनते हैं, लेकिन पीछे पटक से दिखता है। बहुत सा आदमी ऐसा रुकू जाता है तो उसका शर्मगाह दूसरों को शर्म नजर आता है। भाई शर्मगाह का नजर आना वजू टूट जाता है, यानी दूसरों को गुनहगार को क्यों डालते हैं? दूसरों को गुनहगार को डाले कैसा हो जाता है? यानी वजू नहीं टूटेगा तो भी नहीं तो, लेकिन शर्मगाह को छुपाना है ना, फर्ज है ना। बोलो भाई, छुपाना कि नहीं? इसलिए क्या करेंगे? पैंट को अच्छा चढ़ा कर क्या करेंगे? ऊपर अच्छा चढ़ा के बेल्ट डाल के बैठेंगे, और नीचे ऊपर चढ़ गया तो क्या भी परवाह नहीं, नीचे नहीं उतरना, वहां ऊपर नहीं उतरना। नीचे ऊपर चढ़ गया तो परवाह नहीं, ऊपर से नीचे नहीं उतरना। समझ में क्या? पैंट को क्या करना? अच्छा ऊपर चढ़ा के अच्छा पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो हमारा नमाज फराज अदा हो जाएगा, वरना हमारा नमाज अधूरी ही रहेगा। हम समझ लेंगे भाई नमाज समझ गया, भाई आपका नमाज क्या पढ़ लिया? आपका बदन पाक नहीं, आप नमाज पढ़ लिया, कपड़ा पाक नहीं, आप नमाज पढ़ लिया, जगह पाक नहीं। इसलिए ये सातों फर्ज को हम ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपने कमरों में पढ़ेंगे, कहाँ भी किसी हाल में नमाज नहीं करना, क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पाबंदी से पढ़ेंगे, बोलो सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज से दिल में एक आहद कर लो, भाई जो बात कही गई है वो हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। अपने दिल में हाथ रख कहो इंशाल्लाह इतना जिंदगी भाई कैसा कैसे की गुजार दिया, भाई कैसा कैसे छोड़ दिया। अरे नापाक हालत में, अरे गुस्ल फर्ज था वैसे ही छोड़ दिया, कपड़ा नापाक था वैसे ही छोड़ दिया, बदन नापाक था वैसा छोड़ दिया, अरे जगह नापाक था वैसे ही छोड़। नहीं, इंशाल्लाह आज से इस मजलिस में एक तौबा करेंगे, एक अहद करेंगे, एक आज़म मुसम्मम करेंगे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, इतने दिनों से मैं ऐसा गुनाह कर दिया, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं तौबा करता हूँ। इंशाल्लाह इस नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, करेंगे इंशाल्लाह, अहद करेंगे इंशाल्लाह भाई। सब दिल में एक अल्लाह के पास एक अहद अपने आप अपने दिल में हाथ रखो, एक अहद कर लो, आइंदा से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। भाई जवानी की हालत में नहीं छोड़ना, बहुत। इसलिए क्या करेंगे इंशाल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ना। दूसरी चीज यहाँ देखो हफ्ते में एक मरतबा गश्त होता है, शनिचर के दिन आपको गश्त में भी वक्त में तो आ जाना है। हर वक्त हर बोलते रहते, हर वक्त हर बैठने में मिलते हैं, लेकिन उसका फुर्सत नहीं होता। देखो आगे पीछे देखो वक्त को तो यहाँ फजर में क्या पता है, नमाज के बाद तालीम पढ़ा जाता है, तालीम फज़ाइल अमल पढ़ा जाता है। तालीम आप फज़ाइल अमल में बंगाल में भी नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या है वो ये बंगला में भी है, और आप जाकर उसको भी लेकर जाकर पढ़ सकते हैं। आप आपके रूम में क्या करो, नमाज पढ़ने के बाद फजर के बाद तो 4 आदमी पर नमाज पढ़ लिया, और एक दो हदीस पढ़ ली बस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बेमिसाल में हमारा मरकज है हमारे यहाँ, वहाँ एक दिन हफ्ता या इतवार के दिन शाम में मगरिब से लेकर इशा तक आप हो सकते हो, फजर रात भी उधर शब्दगुजारी करके फजर पे आ सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो हमारा कुछ क्या हो जाएगा, दिल साफ होगा, हमारे अंदर ईमानी जज्बात हमारे अंदर पैदा होगा, जिसके जरिए हम क्या कुछ अमल करने के अभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन सकते हैं। वरना जैसे जैसा रहेंगे वैसे ही रहेंगे। इसलिए ये चीज़ों का इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम क्या करेगा, दोनों दुनिया में अल्लाह चमका करेंगे इंशाल्लाह। नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये काम यानी गश्त में आप जिस जहाँ में हो क्या हो सकते हैं, ना हो तो वही नमाज